Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening, everybody. There are loud voice आने चाहिए सबके, है ना? Because it's a evening, and that has to be a bit louder because it's a fresh evening. Okay, so just have the recall what we have seen in last lecture. Anyone, please? Hayes law. Yes, anyone, just revise what we have seen in last lecture. Hayes law. Hayes law, very good. More. Applications of Hayes law. Applications of Hayes law, very good. Furthermore, Spontaneity. what? Spontaneity. Yes, spontaneity. Yes. Entropy. Entropy, very good. Total entropy. Total entropy, very good. All done. Most of the things are done. Yeah, very good, very good. It's very nice to hear to you that you are able to recall all these topics and all. So that means you are getting the topic what we are discussing here in this lecture as well, as I perceived it. Okay, so now this is the concluding lecture for thermodynamics. It's a biggest chapter, I think, here in 12th chemistry and most conceptual chapter. And today we are going to continue with the concluding lecture of this because we are almost at the end of this chapter. And that's why we have to conclude chapter in today's lecture. Let's have the recap of what we have discussed here in the chapter till then. Initially, when we have started with this chapter, we have seen the definition of thermodynamics and limitations of thermodynamics.
at the starting of the chapter. Furthermore, we have seen fundamental definitions. There are many more fundamental definitions which are related with thermodynamics. We have seen that comprises of system, surrounding, boundary, open system, closed system, isolated system, extensive property, intensive property, process, isoporic, isobaric, isothermal, reversible, irreversible, cyclic process. Then we have seen that is what is the state of system, state function, thermodynamic equilibrium. So these are the fundamental definitions what we have seen initially here in the chapter. And then afterwards we have started, we have entered into the chapter where we have seen that is work. And we have seen work operated in two processes. Number one is isothermal irreversible, and number two is isothermal reversible. So that is also what we have seen over here. Then furthermore, we have entered into the concept of heat and internal energy. And then we have discussed first law of thermodynamics. We also derived the mathematical derivation for that, different statements, interpretations of that law. And then, being this law had some certain limitations, we have proceeded for the second law of thermodynamics. So, second law we was going to discuss. And then afterwards, we have seen the core part of the chapter is nothing but the enthalpy. So, the enthalpy was a in-depth concept and the core concept of this thermodynamics. Because we have to apply it to the chemical reactions or number of processes, number of changes, what taking place naturally or artificially. We have seen different types of this enthalpies. So we have seen enthalpy of physical changes, that is fusion, vaporization, condensation, freezing, sublimation. Then also we have seen enthalpy of atomic and molecular changes, that is enthalpy of ionization, electron gain enthalpy, enthalpy of atomization, solution enthalpy, lattice enthalpy, hydration enthalpy, so onwards. Also, we have seen thermochemistry where we have discussed what are the heat changes taking place during the course of chemical reaction, that is discussed at the thermodynamics, and that is nothing but thermochemistry. And delta H equal to H2 minus H1. That is summation of enthalpies of product minus summation of enthalpies of reactant. That is also what we have discussed. Then we have seen that is bond enthalpy, then reaction enthalpy from bond enthalpy. These are the concepts which are related with enthalpy we have seen. And the concluding part of that here, enthalpy was nothing but the His law. तो हिस लॉ ने ये बताया कि whenever any product is formed, that may be formed in a single step or many stages, overall enthalpy change doesn't depend upon the path followed by the system or stages followed by the system. That remains the similar. That is what we are seeing in his law. His law के अंदर उसका हमने statement, उसका illustrations, उसके examples and उसके applications, ये चार topic उसके साथ जुड़े हुए हमने देखे थे. At the end of his law, we come from that scientist has some questions and they were trying to find out answer for the things. There are many things here in nature which are spontaneous, and what are the reasons behind this spontaneous process? That was a big question before the scientists, and they tried to find out answer for this spontaneity. First, they define the spontaneity. What is spontaneous process? What is non-spontaneous process? And they tried to find out answer for that one. First answer was nothing but the heat. After going through a number of reactions or many data and processes. But again, there are some exceptions in which they found that heat is not the right criteria, right answer to answer this spontaneity. So they introduced a new concept called as entropy. Entropy is a measure of disorder. So if disorder increases, entropy also increases. If disorder decreases, entropy also decreases. So that is also called as a randomness. So in any of the reactant, if number of reactants, number of moles of reactants are less and number of moles of product are more, then that entropy increases. Entropy is positive, that is greater than zero. Any of the reaction, number of moles of reactants are more and number of moles of product are less, then that entropy decreases, that is negative. Delta S is negative. And the reaction in which number of moles of reactant is equal to number of moles of product, there is no change in entropy, that is change in entropy is equal to zero, that is process is at equilibrium. हमने quantitative definitions, that is mathematical definition of entropy पे हमने देखा था, delta S is equal to Q reversible upon T. ये भी कल हमने देखा. Then उसको हमने signify भी किया, उसको हमने interpret भी किया कि how entropy depends upon the heat. If heat is supplied, then disorder increases, so entropy is also increases. That is also what we have proved with that part. Then उसके बाद हमने देखा था कि there are many processes in which change in entropy is positive, and that's why these processes are spontaneous. Though there are some exceptions, we found that, like water example. Here, entropy of the system is negative, though the process is spontaneous, which was not expected like that. Then we have gone for the next concept called total entropy. So total entropy is entropy of system plus entropy of surrounding. Then how entropy is calculated, already we have seen the formula of entropy, Q upon T. Based on that, we have calculated the entropy, total entropy. And here finally we come to conclusion that the process
who is spontaneous has to have the change in entropy positive greater than 0, है ना? So that process is always spontaneous. So in short अगर हम उसे summarize करना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं कि change in entropy delta S must be greater than 0 and that process has to be spontaneous. दूसरा, delta S must be less than 0 and that process has to be non-spontaneous. It's non-spontaneous. Or whenever delta S is equal to 0, this process is at equilibrium. There is no change in the reactant or product or process that is at equilibrium. So this is, तो दुनिया में कोई भी प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियस होता है तो उसका या तो सिस्टम एंट्रोपी नहीं तो टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव होना ही होना. अगर आप इसे टोटल एंट्रोपी के फॉर्मेट में कहते हो तो बस इतना ही कहेंगे, टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0, प्रोसेस हैज टू बी स्पॉन्टेनियस. Total entropy less than 0, process has to be non-spontaneous. Or total entropy must be equal to 0, process is at equilibrium. There is neither change in the reactant nor change in the product. There is no change in the process that happens. This is the entropy. This is the concept what we have seen in last lecture. यहाँ तक हमने discuss किया था और आज हम लोग वो कर रहे हैं, that is Gibbs energy तरफ, Gibbs energy तरफ. अब ये गिब्स एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैंने बताया कि कल हमने फॉर्मूला देखा था कि टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, entropy of system plus entropy of surrounding. This is what we are seeing here. So we are interested to know the total entropy, but total entropy how we are going to calculate that must need system entropy plus surrounding. So दोनों entropy उसके लिए जरूरी है. अभी सराउंडिंग तो हम जानते हैं, दुनिया में दो ही चीजें, सिस्टम एंड सराउंडिंग. अगर प्लेन हमने सिस्टम ले लिया तो बाकी सारा हमारा सराउंडिंग में आ जाता है, और बाकी सारा अगर सराउंडिंग में आ जाता है तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सराउंडिंग बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, जिसका एंट्रोपी या फिर एंथैल्पी निकालना हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है. एंड वैसे भी हम लोग इंटरेस्टेड किसके अंदर है? वी आर मोर इंटरेस्टेड हियर इन सिस्टम, नॉट इन सराउंडिंग मोर, बिकॉज वी हैव टू ऑब्जर्व द सिस्टम वेल. सो आवर इंटरेस्ट इज टू डिस्कस सिस्टम, नॉट द सराउंडिंग. सो how what is the option for that? Then H.A. Gibbs is the scientist from America, USA, and he found the solution for that, and he put forth one important concept called Gibbs energy. On his honor, the name is given Gibbs energy. It has been discovered by Gibbs, H.A. Gibbs, and scientist, and on his honor, the name is given Gibbs energy. So the next concept is Gibbs energy, which gives a solution for this equation. This equation को solution देता है how to calculate the total entropy of the system. उसके लिए उसका solution दिया. ठीक है. So let's move to the next concept or last concept of the chapter called as Gibbs energy. So we are here. Gibbs energy. Gibbs energy is given by delta G, simply Z. Gibbs for Gibbs के लिए G हम यहाँ पे use करते हैं. Gibbs energy. Gibbs energy का एक simple सा definition आता है. मेरा पहला मतलब mathematical भी आता है और theoretical भी आता है. तो Gibbs energy G is equal to H minus Ts. This is called as Gibbs energy. This is called the Gibbs energy. So मैं theoretically और mathematically दोनों तरीके से समझाऊंगा. G is equal to H minus Ts. G stands for Gibbs energy. H already हम जानते हैं, that stands for enthalpy. T for temperature and S for entropy. S is a notation for entropy. हम अच्छी तरह जानते हैं. So इसका मतलब है enthalpy minus product of Ts अगर लेते हैं हम लोग, तो that is nothing but the Gibbs energy. अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम ऐसा है कि गिब्स एनर्जी एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है और एंट्रोपी के ऊपर डिपेंड करता है, और हम लोग एब्सोल्यूट ना कि एंथैल्पी कैलकुलेट कर पाते हैं ना कि हम लोग एंट्रोपी कर पाते हैं, बिकॉज हम दोनों भी चेंज इन एंट्रोपी की और चेंज इन एंथैल्पी के फॉर्मेट में कैलकुलेट किए हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एनर्जी. हम इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, इसलिए एंथैल्पी भी मेजर नहीं कर सकते. इसलिए हमने क्या किया, इंटरनल एनर्जी चेंज में मेजर कर दिया, तो एंथैल्पी भी हमने चेंज में मेजर कर दिया. अगर एंथैल्पी चेंज में मेजर करते हैं, एंट्रोपी भी चेंज में मेजर करना पड़ता है, और दोनों चेंज में मेजर करते तो ये भी किसमें आएगा, चेंज में मेजर करना पड़ता है. सो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट ऐसा हम लोग करके जाते हैं. तो फाइनली वी गॉट डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S. This is the equation of what we call as Gibbs energy. This is the equation of what we call as Gibbs energy. So Gibbs energy is also absolute measurement of Gibbs energy is difficult, क्योंकि Gibbs energy एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है और एंट्रोपी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कि एब्सोल्यूट मेजर नहीं कर सकते. समझ रहे हैं आप लोग? सो हम ये दोनों एब्सोल्यूट मेजर नहीं कर सकते, दोनों को चेंज के फॉर्मेट में लेते हैं, तो एंथैल्पी भी एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो भी चेंज के फॉर्मेट में होगा. सो दैट्स व्हाई गिब्स एनर्जी इज आल्सो मेजर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ डेल्टा G. So delta G must be equal to delta H minus T delta S. This is the formula, this is the mathematical form using which we can calculate the entropy Gibbs energy of the system. That is what we can say. Now ये तो हम mathematical form, theoretically आपको नहीं समझाऊंगे what is the Gibbs energy, what is the Gibbs energy. ठीक है, चलो हम लोग आप लोग 12th पे हो तो इसलिए आप लोग 11वीं में कॉलेज वगैरह जाते थे. कॉलेज जाते थे तो आपके टाइम कुछ पॉकेट मनी आपको दिया जाता है ना.
रेयरेस्ट केस में कभी होता होगा, किसी को नहीं मिलता होगा, दैट्स वैलिड, बट नॉर्मली मिलता है हम लोग को। अभी देखिए कभी कभी होता है कि हमारे डैड के पैकेट में बहुत सारा पैसा है, अभी तो लॉकडाउन है, अभी नहीं होगा, सो डोंट मिस इंटरप्रेट द सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स और एग्जांपल, डोंट एक्सटेंड इट मोर, डोंट स्ट्रेच इट मोर। दोनों डैड के पैकेट में पैसा है, बट आपके उतना काम का नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज फ्री, अनलेस एंड अनटिल इट इज फ्री। हाँ, पैकेट मनी करके आपको डैड ने चलो एक संडे को खुश होकर आपको अगर माना कि मानो 500 रुपये आपको दे दिया, तो आप खुश हो जाते, बिकॉज दैट 500 रुपीज इज योर्स नाउ, मतलब दैट इज योर्स नाउ। जो कि पापा के पैकेट से, पापा के पैकेट में कितने वी डोंट नो, दैट में ही मे बी हैविंग मोर, बट हमारे पास 500 आ गए तो हमारे लिए फ्री हो गए, दैट इज आवर गिफ्ट जनरेशन, दैट इज आवर गिफ्ट जनरेशन। तो गिफ्ट जनरेशन का मतलब क्या है कि सिस्टम में बहुत हो सकता है, सिस्टम में कितना भी हो सकता है, जितना फ्री होगा वर्क ऑप्टेन करने के लिए, वही हमारा गिफ्ट जनरेशन, वही हमारा गिफ्ट जनरेशन। दूसरा एक साइंटिफिक एग्जांपल उसका मैं ऐसा देना चाहूंगा कि हम पेट्रोल की बात करते हैं, हमारे गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल पुट करते हैं, सर हमारे गाड़ी के अंदर 1 लीटर पेट्रोल हमने पुट किया, हम नहीं जानते कि पेट्रोल के अंदर एक्चुअली कितना एनर्जी प्रेजेंट है, बट हमारा गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल के अंदर, 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 60 किलोमीटर चला जाता है, तो उतना एनर्जी तो हमारा होता है, उतना एनर्जी 100% हमारा है। तो अगर उतना एनर्जी हमारा है, सो दैट इज कॉल्ड एज गिफ्ट एनर्जी। जितना उसमें से बाहर निकला, दैट इज, वो हमारा है, वो हमारा होता है, तो वो एनर्जी हमारा होता है, दैट इज व्हाट वी कैन से गिफ्ट एनर्जी। द एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल टू डू वर्क इज कॉल्ड एज गिफ्ट एनर्जी। सोर्स may have lot of, source may have unlimited energy stored in that. Whatever energy is available to do work, that energy should be called as a gives energy. So system में भी बहुत सारा हो सकता है, सिस्टम में से कितना बाहर आ रहा है, कितना हम बाहर निकाल पा रहे हैं, that is our gives energy. So the energy which is available to do work must be called as a gives energy. उसमें कितना भी हो, that is called as a gives energy, and that is calculated by delta G is equal to delta H minus T delta S. इससे हम लोग उसे दे सकते हैं, उससे हम लोग निकाल सकते हैं, that is called as a gives energy. तो इसका मतलब क्या होता है, gives energy depends upon delta H and delta S, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी गिव्स एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि हमारा सिस्टम कैसा होगा, मतलब आइदर सिस्टम विल बी दैट इज यू कैन से हियर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द गिव्स एनर्जी। चलो हम लोग इक्वेशन छोटा सा प्रूव करते हैं यहाँ पे। हम लोग टोटल एंट्रोपी तो डिस्कस कर चुके हैं, टोटल एंट्रोपी क्या देखे कि डेल्टा एस टोटल, ओके, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस हियर एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग एंट्रोपी, ये देख चुके हैं हम लोग। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें एंट्रोपी निकालना है तो एंट्रोपी का जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी ये फॉर्मूला देखा है। और हम इसके बदले ये भी जानते हैं कि क्यू के बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन टी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कल हमने देखा था क्योंकि हम जानते हैं क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और क्यू का वैल्यू क्या था, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और डेल्टा एच इज एंथैल्पी, उसका वैल्यू भी क्या था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा, तो उस तरीके से ये आ जाता है। तो इन दैट सेंस अगर हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो क्यू अपॉन टी, अगर क्यू नहीं है तो वी कैन हैव द फार्मूला डेल्टा एच अपॉन टी, इस फॉर्मेट में भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो वी हैव व्हाट इज क्लियर, तो इतना हम लोगों को मिल जाता है। नाउ द थिंग इज दैट हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि सपोज देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। अभी ये पेन है और मानो ये सिस्टम, और इस पेन ने क्या किया कि एंथैल्पी अब्सॉर्ब कर दिया, डेल्टा एच अब्सॉर्ब कर दिया, तो उसका अपना कुछ तो एंथैल्पी था, है ना। अभी उसने उसका एंट्रोपी अब्सॉर्ब कर दिया, तो उसने एंट्रोपी अगर अब्सॉर्ब कर दिया तो हम लोग सराउंडिंग से एंट्रोपी माइनस हो गया, है ना। जितना एंथैल्पी इसके अंदर अब्सॉर्ब होगा उतना सराउंडिंग से माइनस होगा। अगर सिस्टम रिलीज करता है तो वो सराउंडिंग के अंदर चला जाएगा, बराबर, तो वो सराउंडिंग के अंदर चला जाएगा। तो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग अगर मुझे निकालना है, सीना गया कि दिस इज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, तो क्या आएगा, वो Q अपॉन T आएगा, वही फॉर्मूला है। Q के बदले हम डेल्टा H लेते हैं, तो दिस इज डेल्टा H अपॉन T, इतना आएगा, डेल्टा H अपॉन T इतना आएगा, दिस इज। अभी देखिए इसका डेल्टा H का वैल्यू दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आइदर सिस्टम इज एक्सोथर्मिक, आइदर सिस्टम इज एंडोथर्मिक। वी आर टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग। अगर हमारा सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करता है तो वो सराउंडिंग से क्या होगा, माइनस होगा, वो सराउंडिंग से क्या होगा, माइनस। तो देयर विल बी अ माइनस साइन। माइनस क्यों आया, बिकॉज सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया, सराउंडिंग से वो माइनस होगा। अगर सिस्टम लूज करता है तो सराउंडिंग में क्या होगा, प्लस होगा। तो हम पहला केस कंसीडर कर लें कि सिस्टम एब्सॉर्ब्स एंथैल्पी, सिस्टम एंथैल्पी एब्सॉर्ब कर रहा है, फेन एंथैल्पी एब्सॉर्ब कर रहा है, तो सराउंडिंग से वो माइनस होगा। तो विल गेट दिस वन, ये आप लोगों को मिल जाता है।
तो वी कैन पुट दिस फॉर्मूला हियर, सराउंडिंग के ऊपर डेल्टा एस हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल, अब ये जो है ना सिस्टम का है, इसे हम लोग सिर्फ डेल्टा एस कहेंगे, डेल्टा एस, क्योंकि टोटल के लिए तो हमने ये कहा, सराउंडिंग के लिए भी हमने लिखा, तो इसको हम सिर्फ सिस्टम लिखते हैं। डेल्टा एस हमेशा सिस्टम का ही होगा, इसलिए नहीं तो लिख भी सकते हो डेल्टा सिस्टम एस, बट नॉर्मली ये प्रैक्टिस में डेल्टा एस मतलब वो सिस्टम का ही है। माइनस माइनस डेल्टा एच अपॉन क्या आएगा, टी, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, इतना आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अभी इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आप लोग, तो हियर टी डेल्टा टी एस इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, है ना, ये इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो अगर प्लस में देते हैं, सो रीअरेंज करते हैं यहाँ पे इक्वेशन, तो क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे टी टी डेल्टा टी एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T delta S. This is the equation what we get. And this is nothing but the Gibbs energy. What is delta G? तो ये ऑलरेडी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये माइनस में आएगा, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, अगर हम साइन चेंज करते हैं, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस। तो चेंजिंग साइंस, दिस इज गॉट माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये हम लोगों को मिल जाता है। नाउ द थिंग इज दैट दिस इज नथिंग बट द डेल्टा जी, दिस फैक्टर इज नथिंग बट द डेल्टा जी। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, इतना आ जाएगा, या फिर डेल्टा जी को माइनस कर देते तो ये आएगा टी डेल्टा एस टोटल, इतना आ जाएगा, हम लोग ये मिल जाता है। दिस इज व्हाट वी गॉट, दिस इज। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर डेल्टा जी हैज टू बी नेगेटिव, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर डेल्टा जी हैज टू बी नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी हैज टू बी पॉजिटिव। सो इन शॉर्ट जैसे हमने पहले इक्वेशन लिखा था कि डेल्टा एस, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, then 0 is greater than delta G, process has to be spontaneous, process has to be spontaneous. दूसरा, delta S is less than 0, which is greater than delta G is greater than 0, that process has to be non-spontaneous. और तीसरा, delta S is equal to 0, which is equal to delta G, process must be at equilibrium. ये ऐसा आ जाता है। तो हमने जो पहले डिस्कस किया था, पहले हमने इतना डिस्कस किया था कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर डेल्टा एस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो डेल्टा एस जब ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, डेल्टा एस जब ग्रेटर देन 0 होता है तो डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, दैट प्रोसेस हैज टू बी अ नेगेटिव, दैट इज स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस इज लेस देन 0 एंड डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, दैट प्रोसेस हैज टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे डेल्टा इज लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव में चला जाएगा, और डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा जी भी 0 होगा, प्रोसेस हैज टू बी एट इक्विलिब्रियम। So this is the solution provided by Gibbs named scientist. So Gibbs named scientist ने हमारे पास formula दिया how to calculate the enthalpy or how to calculate the Gibbs energy. That is the energy which is free energy which is available to do work. किसी सिस्टम में से किसी भी सिस्टम का जो फ्री एनर्जी होगा which is available to do work, that is called as Gibbs energy. और ये हम लोग थे Gibbs energy निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन हम ये जानते हैं कि these are the absolute values, और कोई भी absolute value हमारे पास नहीं है, and that's why we have to have change in Gibbs energy. Change in Gibbs energy is equal to delta H minus T delta S. This is the formula. और definition क्या है? The free energy which is available to do work is called as Gibbs energy. और हम लोग टोटल एंट्रोपी इस तरह से निकालते हैं, टोटल एंट्रोपी इस तरीके से निकालते हैं। एंट्रोपी का नॉर्मल फॉर्मूला ये है, इसके अंदर सराउंडिंग एंट्रोपी निकाल देते हैं, उसके वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाता है। इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जिस किसी प्रोसेस मतलब जो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है उसका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है तो डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, मतलब डेल्टा जी माइनस में होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, तब जाके प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा एस लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, दैट इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे। और अगर प्रोसेस में कोई चेंज नहीं, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, देन डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा जी व्हिच इज इक्वल टू 0, दैट व्हाट वी गेट हियर। दिस इज कॉल्ड एज गिब्स एनर्जी। ये हम लोगों को गिब्स एनर्जी आ जाता है। क्लियर विद दिस? होप सो। गिब्स एनर्जी कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया मैंने आपको बताया। द रीजन बिहाइंड दैट वी आर इंटरेस्टेड टू नो द सिस्टम एंट्रोपी, especially for that reaction which is that process which is a spontaneous one. बट सिस्टम का अगर नेगेटिव आ जाता है तभी भी सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियस है तो टोटल निकालना पड़ता है, और टोटल निकालने के अंदर सराउंडिंग आ जाता है और उसे अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए गिब्स ने सॉल्यूशन दिया कि सराउंडिंग के बदले हम लोग ये डेल्टा जी निकाल सकते हैं, डेल्टा जी मतलब इस तरीके से, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस हैज टू बी स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस हैज टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी 0 आ रहा है तो प्रोसेस हैज टू बी एट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज कॉल्ड एज गिब्स एनर्जी। ये गिब्स एनर्जी हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अभी देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। जैसे हमने एंथैल्पी देखा था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी देखा था, एंट्रोपी देखा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी देखा, है ना।
स्टैंडर्ड एंट्रोपी भी आता है, उसके बारे में मैंने कहा कि एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू 0, जैसे कि आयरन कॉपर वो इसकी बात करते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से जिस तरीके से गिब्स एनर्जी उस तरीके से स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आता है। तो गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हैज टू बी डेल्टा जी नॉट। अगर इसी इक्वेशन के अंदर डिस्कस करते हैं, ये अगर ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, तो दिस हैज टू बी स्टैंडर्ड एंड दिस कॉल्ड एज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अगर ये वैल्यूज नॉर्मल है तो दिस विल बी अ नॉर्मल गिब्स एनर्जी, अगर ये वैल्यू स्टैंडर्ड है तो दिस विल बी अ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। So we have to discuss the concept of standard Gibbs energy. Okay, so let's move to the standard Gibbs energy. Now, standard Gibbs energy is given by delta G is equal to delta G naught plus RT ln K. RT ln K. अब ये फॉर्मूला यहाँ पे सीधा आता है और मैं सीधा दे रहा हूँ आपको। रीजन बिहाइंड दैट, ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको याद दिलाना, ये फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि दैट इज, यू कैन से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln k, दैट इज व्हाट वी कैन सी। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला विल प्रूव इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्रूव किया है, छोटा सा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, विल मतलब नॉन इक्वेशंस हम वहाँ पे प्रूव करते हैं। यहाँ पे इतना याद रखिए कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से दिया जाता है। अभी इसके अंदर डेल्टा जी स्टैंड्स फॉर चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी नॉट स्टैंड्स फॉर standard Gibbs energy, R for gas constant, T for temperature, ln is log base E and K is a chemical equilibrium constant। जो हमने chemical equilibrium constant नाम का चैप्टर डिस्कस किया था, chemical equilibrium, उसके अंदर का आता है K constant। अब this K can be represented as Kc, can be represented as Kp, 11th standard। So K is a reaction constant that can be represented as Kc or as a Kp। Yeah, now at equilibrium जब इक्विलिब्रियम आता है तो अभी हमने देखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा जी। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू कितना होता है, 0। अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा तो वी कैन पुट इट हियर, यहां पे पुट कर सकते हैं। ये 0 होगा तो दिस इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा जी नॉट, ये उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस आरटी ln k, इतना वैल्यू आएगा बिकॉज़ डेल्टा जी 0। सो दैट्स व्हाई डेल्टा जी 0 बनेगा। ये इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आरटी ln k। This is the form what we get here। ठीक है, now this ln can be converted into log base e। जैसे कि ln का वैल्यू हमने बताया था, ln is equal to 2.303 log base 10 k, ऐसा उसका वैल्यू, log base 10 ऐसा वैल्यू, मतलब k उसके अंदर है। तो ln मतलब log base e और log base का वैल्यू होता है 2.303 log base 10 ऐसा वैल्यू। तो we can put this value here। तो delta g naught is equal to minus 2.303 RT log base 10 K, इतना आ जाए। So this is the formula by which we can calculate standard Gibbs energy। This is the formula by which we can calculate standard Gibbs energy। तो ये हम लोगों को standard Gibbs energy मिल जाता है। Clear with this? So this is the formula for standard Gibbs energy। But what is this K now? आपके सामने सवाल होगा कि K है कौन, क्या है K? K is a chemical equilibrium constant। मानो हमने रिएक्शन देखा है, A moles of A reacts with B moles of B produces C moles of C plus B moles of D, ऐसा हमारा रिएक्शन है। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। आपको बोर्ड का दिखाई दे रहा है, शायद थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, राइट, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। सो A moles of A reacts with B moles of B gives you C moles of C plus B moles of D, ऐसा रिएक्शन है। सो रिएक्शन पढ़ने का तरीका है, A moles of A reacts with B moles of B produces C moles of C, इस तरीके से हम लोग उसे रीड करते हैं। अभी इसे जब हम लॉ ऑफ मास में अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं K इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर हम जानते हैं K इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू B, राइट। ये हमने देखा था, और ये कहाँ देखा था हमने, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमारा 11th स्टैंडर्ड में है, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, सो ये हम लोगों को मिल चुका है, अभी हमें 12th में भी आ चुका है उस तरीके से। सो K इज इक्वल टू ये आता है, दिस इज कॉल्ड एज K। K इज केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ concentration of product to the concentration of reactant raised to suitable power। So it is the ratio of concentration of the product of concentration of resultant to the product of concentration of reactant raised to suitable power, ratio होता है।
जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, और जितने रिएक्टर होंगे उनके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और रेस टू सुटेबल पावर, पावर क्या होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स उनके पावर होते हैं, दैट इज यू कैन से के। अभी ये कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मेट में, सो ये मोल्स पर डीएमक्यू स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखा जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी, इस तरीके से हम लोग लेते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम उसे प्रेशर के फॉर्मेट में लेते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज Kp इज इक्वल टू इधर Kc इज इक्वल टू बिकॉज इट इज कॉन्सेंट्रेशन, और Kp के फॉर्मेट में लेते हैं तो हियर क्या है प्रेशर ऑफ C रेस टू C into pressure of D raised to D upon pressure of A raised to A into pressure of B raised to B, इतना आपको मिल जाता है। So we got this one, ये हम लोग को मिल जाता है। So this K, this is K, और K can be expressed as Kc, K can be expressed as Kp। K जो इस इक्वेशन के अंदर हमें K दिखाई दे रहा है, ये वाला K, ये हमने इधर जो देखा है वो this K, K is nothing but the chemical equilibrium constant, and this chemical equilibrium constant can be represented like this one, किसी भी रिएक्शन के अंदर इस तरीके से दिखाया जाता है, either in the format of Kc or in the format of Kp, ये दोनों फॉर्मेट में हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, और ये हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा उस हिसाब से। बस K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, either Kc और either Kp, आपको न्यूमेरिकल में किस फॉर्मेट में दिया है उसके आधार पर we have to make the changes, तो based on that we have to make the changes accordingly, either Kc or either Kp। Clear with this? Hope so you got this. This is college gives energy, and almost this is the end of chapter. Now the last topic which is not included in our syllabus but we need to know, that is it can have here, that is third law of thermodynamics। Third law of thermodynamics हमने अभी तक two law discuss किए थे। पहला law thermodynamics का क्या कहता है, that is energy can neither be created nor be destroyed, only one form of energy can be converted into another form, this is called as first law of thermodynamics। second law क्या कहता है, second law कहता है that is heat always flows from hot end to cold end, है ना, या फिर heat energy of work, equivalent amount of work, that is second law। third law किस बारे में कहता है, हमने solid state नाम का चैप्टर डिस्कस किया था, और solid state के अंदर हमने देखा है solids are classified into two categories, that is crystalline solids and amorphous solids। do you remember that part? Solid state first chapter, उसके अंदर देखा था कि solids are mainly classified into two categories, crystalline solids and amorphous solids। अब जहाँ पे हमने crystalline solid का definition देखा था, crystalline solids are the solids in which constituent particles are arranged in definite repeating order। crystalline solids are the solids, these are the homogeneous solids in which constituent particles are arranged in a definite repeating order, and that is called, you can say, crystalline solids। So constituent particles are arranged in definite repeating order are called as, you can say, crystalline solids। तो ये हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। Now third law उसी के साथ जुड़ा हुआ है, the entropy of perfectly ordered crystalline solid substance, entropy of perfectly ordered solid crystalline substance is equal to 0 at absolute temperature। दुनिया में जो भी कोई perfectly ordered crystalline solid substance होगा, pure substance होगा, pure होगा, crystalline solid substance होगा, तो उसका एंट्रोपी 0 होता है at absolute temperature। This is called the third law of thermodynamics। So the entropy of any perfectly ordered crystalline solid substance must be equal to 0 at absolute temperature, is called the third law of thermodynamics। Third law of thermodynamics, तो ये उसके अंदर आता है, that is entropy, और this is the end of this chapter। ये chapter का यहाँ पे end हो जाता है। Theoretically all the topics, all the derivations are done here in thermodynamics, and that was the lengthy and conceptual chapter। Now the thing is that इस चैप्टर में एक और एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता है, दैट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल्स। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अगर हमें करने हैं तो उसके लिए सिर्फ सिंपल सी एक बात है, all the formulas has to be done well, all the formulas has to be done well। once you go through all the formulas, all the concepts, then based on that you would be able to solve most of the numericals here, क्योंकि हमारे बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर सॉल्व न्यूमेरिकल दिए है, उसके आधार पर हम लोग अनसॉल्व न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, और हम भी करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। विल आल्सो सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। बट ध्यान रखिएगा कि बहुत बार बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि थियोरेटिकली काफी लर्निंग की आदत है हम लोग, तो हम लोग लर्न करते हैं थियोरेटिकली। एक चीज जो हम लोग लैगिंग करते हैं यहाँ पे, दैट नथिंग बट यू कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेरिवेशंस, देन उसके फॉर्मूले एंड द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन दैट एंड यूनिट्स।
इतनी चीजें अगर हम लोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूमेरिकल हम लोग को मुश्किल जाएगा. So what I will appeal you again, I will suggest you go through the thermodynamic chapter well. Just first go through all the definitions what we have seen initially, number 1. Number 2, go through all the concepts what we have seen. Number 3, go through all the derivations. Just practice 1 or 2 times. All the derivations are easy or simple. Just practice 1 or 2 times. You can go through all the derivations very easily. And lastly, learn all the formulas. Learn all the formulas. After understanding, learn all the formulas with quantities given, with their units given, and then read the numerical. देखो आपको कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं जाएगा. Clear with this? So that's all from my side for this thermodynamics. इसके अंदर डेरिवेशंस कहाँ पे आते हैं देखिए ना. सबसे पहला आता है वर्क का W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. दूसरा आता है वर्क मैक्सिमम W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 upon V1 either P1 upon P2. तीसरा आता है Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस P डेल्टा V. Then fourth आता है एंथैल्पी का डेल्टा H इज इक्वल टू P डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V या फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. देन आता है गिब्स एनर्जी का डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा H. उसके पहले आता है एंट्रोपी का डेल्टा H इज इक्वल टू Q अपॉन T. एंड गिब्स एनर्जी के फिर काफी सारे फॉर्मेट आ जाते हैं और इन बिटवीन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस, बिकॉज ऑफ व्हिच हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है. बिकॉज हर इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, दैट चेंजेस अकॉर्डिंगली. That change has to be dynamically understood, and I think so it's easy for you that you can go through it. So now I will ask you if is there any difficulty, any doubt from your side, then we'll discuss the difficulty doubt. Otherwise, we'll have to close the lecture. So please open up your camera, open up your unmute your voice, and just have the questions, have the interaction related with the topic or doubt. So please, everyone who has a doubt or difficulty. Anyone who has a doubt, difficulty throughout this chapter, इसलिए concept में थोड़ा difficult है या concept समझा नहीं है, how to prepare this chapter, whatever the difficulty doubt you have, please let us know. Accordingly, I will deliver the topic. या फिर we'll explain. We'll have the interaction. So please, everyone who has difficulty doubt, please. No doubt. That means either you understood well or either you didn't understood anything. That's why. But I got the recap from your side. Well, that means you have gone to the topic well. So please, anyone who has a doubt or difficulty, let me know. Please. Yes, doubt, please. I didn't have quit the lecture. Just I am asking for the doubt. Yes.